How are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. So, after so many days, we are meeting at this point, at this uh, time, because हम थोड़ा सा कुछ अपने बिजी थे इसमें हैपनिंग्स में कुछ इवेंट्स में इसलिए आज से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपने वीकली सेशन जिसमें आज के लिए जो मैंने टॉपिक चूज किया है दैट इज यस साउंड्स दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वन। ठीक है जी, जिसके लिए हम बहुत इजी ले लेते हैं। वंस वी जस्ट गेट ऑन टू द डाइट प्लान और उसके बाद हम उसको काफी एक नजर मारी और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या उसमें मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ पे उसकी लैकिंग्स होती हैं, और जो कि हम ऐसी मिस्टेक्स मैं स्पेसिफिकली देखती हूँ जो कि आप लोगों को पता नहीं चलता और उसको हम जस्ट काउंट इन दैट एज नॉर्मल प्रैक्टिस कि नहीं जी हम तो सही फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए आई विल बी स्टार्टिंग इट विद द फर्स्टली द डाइट प्लान, जिसमें हम बात करेंगे कि डाइट प्लान में मैं बेसिकली बताती क्या हूँ और किस तरह भी कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपने डाइट प्लान को डिटेल में रखूं, इतनी डिटेल हो कि जस्ट वंस यू गेट ऑन टू इट आपको देखने में समझ आ जाए कि क्या है, किस तरह है और किस तरह से आपने उसको अपने लिए इजी टू गो बनाना है। लाइक फर्स्टली, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्टली सब सिंपली मैं उसमें आपके लिए कॉलम्स में या उसमें डिवाइड करके आपके मील्स को 3 meals and 2 snacks, 3 meals and 3 snacks, I divided it like this. But the main point is I precise it with the portions, I precise it with the measurements, I precise it with the size of everything, so that you get to know how can you can pick it in your daily routine. Maybe that will be in grams, maybe that will be in bowl, maybe that will be in like good evening, maybe that will be in your tablespoon options. That is whatever is easy for you to go. But the main thing is that I still see so many ladies taking it exceeding the portion either or skipping some of the major portions. So I thought कि मैं इसके ऊपर properly session रखती हूँ so that you might be knowing that what common mistakes you are taking in that. Most importantly, the most important and the most negligible parts are the notes, जिसमें मैं basic चीजें आपको लिख देती हूँ. I get to mention that your hydration, your sleep, your physical activity, your detox water details, और रिसेंट जो पास्ट में मुझे ऑप्शन जो आ रही है कि जी अगर मैंने प्रोटीन शेक लिखा है तो जी मैम विच प्रोटीन शेक वी हैव टू डू, आई हैव मेंशन्ड द डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर द मॉर्निंग ड्रिंक, for the morning drink I've always mentioned it that if you have to soak it for overnight either or if you have to boil it. Okay, but अगर मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिखा that means that you have to take it lukewarm every morning, in any time. अगर बेशक आप अपने वेट लॉस जर्नी में हैं या आपने वेट लॉस जर्नी में नहीं है, you should मतलब हमारी बॉडी को एक साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च के अकॉर्डिंगली our body needs क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है तो हमें थोड़ा सा वार्म जो चीजें हैं वो हमारी बॉडी में ज्यादा सुटेबल रहते हैं. सो मॉर्निंग में इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग योर मॉर्निंग ड्रिंक जस्ट गो फॉर 2 glasses ऑफ ल्यूक वार्म वाटर एटलीस्ट, सो दैट आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए डाइजेशन के लिए फॉर होल वीक. मॉर्निंग ड्रिंक में अगर आपने अपनी स्पेसिफिक ड्रिंक नहीं ली है, इफ यू आर नॉट टेकिंग दैट मेंशन ड्रिंक जस्ट गो फॉर 2 glasses ऑफ ल्यूक वार्म वाटर. And any other mentioned drink that I have suggested you in your meal plans, try to have it in warm consistency. Like अगर आप उसको अगर if you have chia seeds, half glass of chia seeds soaked it overnight. With 1 teaspoon chia seeds and half glass of water. In the morning, just pour half glass of lukewarm water in it, and that's how you'll consume it. The whole chia seed water will be in lukewarm condition. Same goes if you are taking methi dana seeds, fenugreek seeds, you will have it in your again lukewarm, and you will discard the seeds. Fennel seeds, ajwain seeds, fenugreek seeds, they all seeds will be discarded.
Just the helium seeds, chia seeds, basil seeds, they will be consumed as it is because they are oxidized and ready to give your body a kick start of the day. Now, then the turmeric, those members to whom I've mentioned the turmeric water, ठीक है, या मैंने उसमें उनको कार्डिमम वाटर दिया है, दैट यू कैन हैव इट अलोंग विद द टर्मेरिक ऑल्सो। उसके लिए आपको जरूरत नहीं होती है कि आप उसको टोटली छोड़ दें या उसको स्टेन करके पिए। अगर if you have issue with the flavor of, if you have the issue with the taste, you can still you can stain it, लेकिन ओवरनाइट में उसका अच्छा उसके पानी के अंदर उसका आ जाता है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू मेन फर्स्ट मील ऑफ द डे, ठीक है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट आ जाता है। नाउ ब्रेकफास्ट में आई हैव मेंशन 3 to 4 ऑप्शंस इन एवरी डे। ठीक है, मैंने पूरे वीक में एटलीस्ट 3 to 4 ऑप्शंस दिए हैं। दैट आई डू अलाउ एवरी मेंबर दैट यू कैन पिक एनी ब्रेकफास्ट ऑप्शन from any of the options that I have mentioned. But the thing is that you have to follow the same column for every meal. अब ऐसा नहीं है you'll take Monday breakfast, Tuesday lunch, Wednesday dinner, and snacks from Friday, and other snack night drink is for Saturday. No, you will not pick it like this. Choose the column, same column will be used for the whole day. So इसके लिए जरूरी यह है that you manage your grocery and prepare your food well before you start your meal plan, and you'll be well prepared of your meals, कि आपको पता हो कि आपने किस तरह से अपने meals उठाने हैं, उसके लिए preparation आपकी पहले हो जानी चाहिए। So for new members, it's not at all a hurry movement कि जी अगर आपको diet plan मिल गया, you have just have to start it from tomorrow. No, you can start it from day after tomorrow. Also, just prepare your grocery, have your cooked and uncooked list ready, and then you can start it from the next day or from the next meal अगर आपके लिए चीजें available हैं तो। ठीक है, फिर what happens is almost 95% जो मैंने plans बनाए हैं उसमें मैंने mention किया हुआ है that you can have all vegetable except अरवी एंड पोटैटोस। ठीक है जी, ये सब में होगा। ठीक है, अब इसके पीछे लॉन्ग स्टोरी है कि मैं पोटैटो क्यों नहीं देती, अलाउ नहीं करती, या अरवी क्या है, टैरो रूट कहते हैं उसको, दैट फ्रॉम एन पोटैटो फैमिली। ठीक है, वो मैं क्यों नहीं देती, मैं उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन मेरे पास इतने मेंबर्स आते हैं जो कि इसको पता नहीं किस तरह से पढ़ते हैं, दे जस्ट हैव पोटैटो और अरवी और कोई और वेजिटेबल नहीं है। अब मैं उनको इतनी दफा कह चुकी हूँ, प्लीज गिव इट अ थॉरो रीड, उसको प्रॉपर रीड करके देखो कि मैं बता रही हूँ, यू कैन हैव ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट मतलब कि वो नहीं लेनी आलू और अरवी के बगैर, बस सारा कुछ ले लो। अब जब मैं आलू की बात करती हूँ, दैट इंक्लूड्स योर पोटैटो, योर स्वीट पोटैटो ऑल्सो। ठीक है जी, और एक और फॉर्म उसमें मुझे थोड़े दिनों पहले नजर आई थी, उसका नाम कुछ और आ रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने उसको देखा नहीं था पहले, मुझे आई वॉज नॉट मतलब वेल नोन ऑफ दैट वेजिटेबल, लेकिन जब मैंने उसके बारे में सर्च किया दैट वाज फ्रॉम पोटैटो फैमिली, तो मैंने मना कर दिया। दैट वाज मोर और लेस लाइक स्वीट पोटैटो, उसकी तरह का था। अच्छा, सो प्रॉपरली जब आप उसको रीड नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट टू नो दैट उसमें मैंने एक्सेप्ट लिखा था, नॉट दैट के ऑल वेजिटेबल्स आपको एक्सेप्ट हो गई हैं और उसमें आपने नहीं लेना। ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा सा गौर से पढ़ा करें क्या है। उसके अलावा देन आई डू मेंशन द थायराइड पेशेंट्स एंड पीसीओडी मेंबर्स, और कुछ फैटी लिवर या जो इस तरह के कस्टमाइज्ड होते हैं प्लान्स, उनको मैंने मेंशन किया होता है कि अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, वो मैं क्यों देती हूँ। अच्छा, अब वो क्या होता है मिस, जैसे अब मुझे आजकल मौसम, मुझे मैसेज आ रहा है, मैम साग का मौसम आ गया, हम साग नहीं खा सकते थायराइड वाले, तो ये तो वो, तो अब मैं उनको कहती हूँ तो उसको प्लीज प्रॉपरली रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यू विल हैव टू अवॉइड रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, जो कि आपके बेसिकली सैलड्स में आते हैं, दैट कैबेज एंड आइसबर्ग फैमिली ओनली, स्पिनच, साग, पालक, ये जो भी हमारे चल रहे हैं अभी। ठीक है, यू कैन हैव दैट इन योर कुक्ड फॉर्म, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसको रॉ में मैं मना करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मना मैं इसलिए नहीं करती हूँ रॉ में भी है, क्योंकि दे आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, आप उसको यूज करें, लेकिन वो आपके मेटाबॉलिज्म के साथ जाके थोड़ा क्लैश करते हैं, इसलिए हम इसको रॉ चीजों में मना। तो इन चीजों के बारे में आप यू जस्ट गेट अ सिंपल ओवरव्यू, आप लोग चले जाते हो देख के कि जी समझ आ गया समझ आ गया। ठीक है,
मैं बताती हूँ, ठीक है, ले सकते, समझ आ गया, समझ आ गया, वो आप कह देते हो, लेकिन नहीं, आपको उसको प्रॉपर रीड करना है। अब मैं अगर बता रही हूँ कि यू हैव टू कंज्यूम 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, अब इसमें अब क्या हो रहा है जी कि 12 के 12 ग्लास डिटॉक्स पे ही चले जा रहे हो, फिर आके दूसरे दिन मैसेज आ जाता है, मिस दिल खराब होने लग जाता है डिटॉक्स पानी पी पी के, ये हो गया वो हो गया। डिटॉक्स वाटर इज 4 ग्लासेस मोर देन इनफ फॉर यू। मैं बार बार कह चुकी हूँ कि ये हर्बल ड्रिंक्स, डिटॉक्स वाटर अकेले कुछ नहीं करते, ठीक है, दे जस्ट, और ये भी नहीं है कि जी डिटॉक्स वाटर है तो वाटर ही आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, लिवर का ऑलरेडी फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो चल रहा है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो लिवर तो करेगा, बाय नेचर ऐसे बना हुआ है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कि लिवर डिटॉक्सिफाई का काम ही वो करने ये आया है हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन इट जस्ट फ्लशेस आउट हमारी किडनीज को, अच्छा वॉश, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी आ जाता है। मॉर्निंग ड्रिंक्स में जब हम कुछ हर्बल टीज ऐड कर लेते हैं, सिनेमम ऐड कर लिया, या हमने लेमन ऐड कर दिया, ठीक है, वो विटामिन सी भी दे रहा है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं पे आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस कर रही हैं। अच्छा, तो जब मैं क्या कहती हूँ 12 ग्लास पानी, दैट इंक्लूड्स योर डिटॉक्स वाटर एंड योर सिंपल ड्रिंक्स, सिंपल वाटर ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली 2 ग्लासेस ऑफ योर मॉर्निंग ड्रिंक एंड नाइट ड्रिंक भी आ जाएगा उसी में, ठीक है। सो 12 से 15 ग्लास पानी एज एन होल होता है, उसको बैठ के पढ़ लिया करें अपनी क्यूरी, आपकी हर क्यूरी के लिए आई एम ऑल अवेलेबल, मैं बता देती हूँ, ठीक है, बार बार। अच्छा, अब मैं जैसे बता रही हूँ आई एम अवेलेबल, सो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेंबर्स आ रहे हैं, पिक्चर्स भेज रहे हैं, और सब्स्टिट्यूट भी वो खुद ही, ऑल्टरनेट भी वो खुद ही समझ के आ रहे हैं कि हमने ये ऑल्टरनेट किया है, हमने मस्त किया होगा, हमने उसको बिल्कुल ठीक ऑल्टरनेट किया है। अब ऑल्टरनेट क्या हो रहा है, रोटी को ऑल्टरनेट कर रहे हैं जी, रोटी नहीं खानी है अगर अगर तो उसको आप कह लें कि बेसन चिल्ला के साथ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपने कार्ब्स वाले पोर्शन को प्रोटीन वाले पोर्शन से कर रहे हैं, सो वो आपका बैलेंस टोटली खराब हो जाता है। Those members who have been with me for at least 3 months, 6 months, मैंने उनको एजुकेट कर दिया है कि वो हेल्दी स्वैप्स कैसे ले सकते हैं, हाउ दे कैन मैनेज, कि अगर आपने रोटी नहीं लेनी तो राइस लेने हैं। अच्छा, अब मैं जब मैं ये कह लेती हूँ कि दैट यू कैन स्विच, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू कैन हैव 6 days a rice a week, नो, 3 times मैक्सिमम मैं राइस अलाउ करती हूँ, ठीक है। नाउ द साउथ Indian members are so much habitual of taking rice because उनका एक staple food है, because they have a staple food as rice. So उनके लिए I do allow some other options also. I do allow millets for them. I do allow ragi for them, but they are from the same family. कार्ब्स की सेम फैमिली से होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं उनको बेसन में डाल देती हूँ या मैं उनको किस स्प्राउट्स में डाल देती हूँ, वो दैट इज अ टोटली डिफरेंट फैमिली। सो मेरे साथ जो चलते हैं वो इस चीज को समझ लेते हैं कि आपने कौन सी चीज को किसके साथ स्वैप करना है, सो आप उसको प्रॉपरली स्विच कर लेते हैं। लेकिन अब से जैसे अब जो मैं डाइट प्लान दे रही हूँ, जैसे मैंने अब रिवाइज फॉलोअप्स दे रही हूँ, या मैंने उस पे नोट्स टोटली चेंज किए हैं, मैंने उनमें गाइड की फॉलोअप्स में बताया है कि अगर आप स्वैप्स कर रहे हो तो बी दैट माइट डिफरेंशिएट आपके उसमें रिजल्ट्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज मैंने कैलोरी काउंट अगर रोटी के साथ करके आपका फुल डे का 1200 बनाया है, तो वो आपका अगर राइस डालेंगे तो वो 1225, 1285 इतना भी जा सकता है, ठीक है। और अगर मैंने आपको वन स्मॉल फ्रूट कहा है, अब मैं फ्रूट को रिस्ट्रिक्ट नहीं देती, मुझे पता है हर एक के घर में हर फ्रूट हर टाइम नहीं होता, सो आई अलाउ यू टू हैव ऑल फ्रूट, जस्ट बनाना, मैंगो एंड ग्रेप्स विल बी थ्राइस अ वीक, और उसके अलावा कोई भी ले लो। सो अगर इफ यू आर टेकिंग बनाना, ऑब्वियसली उसके साथ कैलोरी काउंट डिफरेंट होता है, इफ यू आर टेकिंग एप्पल उसके साथ डिफरेंट है, इफ यू आर टेकिंग गावा उसके साथ यू हैव डिफरेंट कैलोरी काउंट, उसका मार्जिन मैंने रखा हुआ है, आपके वो 100 कैलोरीज का मार्जिन मैंने रखा हुआ है, उसमें उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट इट्स मोर सेंसिबल कि आपको जो चीज लिखी गई है उसी फैमिली की चीज आप सेंसिबली उसमें पिक करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा मिस की जाती है, दैट इज लो फैट डेयरी, ठीक है। आई डोंट सजेस्ट यू कि मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती इस चीज पे कि बाजार से जस्ट गो एंड हैव लो फैट प्रोडक्ट्स फॉर यू। घर में जो नॉर्मल चाय दूध आ रहा है उसको बॉईल करें, ऊपर से मलाई उतार दें, दैट इज योर लो फैट। अब उसकी अगर आप घर में ही दही बना ले तो योगर्ट कर्ड कर लेते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज कर्ड का योगर्ट का इतना अलाउ करती हूँ कि जो मार्केट से भी आ रहा है, जो विजिबल फैट इफ यू कैन सी इन द प्लेट इन योर इन बाउल, वो हटा के आप थोड़ा वाटरी वाला ले लें, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर यू।
सो आई मेक थिंग्स डूएबल फॉर यू। मेरे लिए ये नहीं होता कि मैं आपको उतने पार्ट पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं, उतने पार्ट पे मैं आपको रख दूं कि नहीं जी यही करना है, ये पत्थर पे लकीर होगी, नहीं करोगे तो जो मर्जी करो। इस तरह तो यू कैन नॉट स्टे कंसिस्टेंट। एंड इसीलिए आई डू नॉट रिस्ट्रिक्ट यू विद द टाइमिंग्स ऑल्सो। मैं टाइम पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। मैं नहीं कहती 7 बजे ब्रेकफास्ट ले लो, 1 बजे लंच ले लो, और फिर 6 बजे ब्रेक दोबारा से डिनर ले लो। I don't know you if you are a late riser or you are an early riser, if you are jobbian or if you are home worker. ठीक है, तो मैं इस पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। आई अलाउ यू टू हैव मील्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट टाइम, बट यू हैव टू एटलीस्ट ये है कि जो एक हमारे नॉर्मल जो साउथ एशियन कंट्रीज में ब्रेकफास्ट लंच डिनर के हैं टाइमिंग्स, हम मोर और लेस उस पे रहेंगे। ठीक है, 7 बजे से शुरू कर लो, 10 बजे तक मैक्सिमम कर लो, उसके बाद 12 बजे से शुरू करो, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक आप अपना लंच कर लो। सो द डिफरेंस बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड फर्स्ट मील एंड सेकेंड मील शुड बी 4 hours, and the difference between one meal and snack will be at least 2 hours. ठीक है, ये आपको मैंने एक ओवरऑल बता दिया, एक रफली आइडिया बता दिया, सो दैट आपको उस पर पता चल जाए। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टॉप योर ईटिंग विंडो एट 8 o'clock, एट द मैक्सिमम उसको 9 कर लो। ठीक है, जो नाइट शिफ्ट करती हैं उनको मैं और तरह से गाइड करती हूँ, दे नो माई पैटर्न कि मैं उनको किस तरह से गाइड करती हूँ। लेकिन जो नॉर्मल है, नॉर्मल रूटीन में जो आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनको मैं यही कह रही हूँ कि 8 o'clock एट द मैक्सिमम, 9 o'clock पे बंद कर दो अपना ईटिंग विंडो, बिकॉज हमारा बॉडी इस तरह से है कि नेचुरली हमारा मेटाबॉलिज्म रात के टाइम इट गेट्स स्लोज डाउन। सो अगर हम उसके ऊपर बर्डन डालेंगे 10 बजे 11 बजे, मुझे मैसेज आता है मैं आई डोंट स्लीप एट नाइट, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं सोती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। भाई अगर आप जाग रहे हो दैट डजंट मीन्स कि आपने उस टाइम खाना भी है। उस टाइम कोई हेल्दी ऑप्शन पिक कर लो, गो फॉर अ कप ऑफ मिल्क, मंच फॉर सम नट्स ओनली। सो इस तरह की चीजें उठाएं जो आपके उस टाइम आपको थोड़ा फुलफिलिंग भी फील कर देंगे, और साथ में आपके लिए आपका पोर्शन भी खराब नहीं करेंगे। लेकिन रात के टाइम 10-11 बजे बैठ के अपना हैवी मील लेना, दैट इज नॉट सजेस्ट, दैट इज नॉट एडवाइज्ड एट ऑल। ठीक है, अब टाइमिंग्स ना लिखने का मकसद यही होता है दैट यू स्टे कंसिस्टेंट, मैक्सिमम कंसिस्टेंट ले, आपकी कन्वीनियंस ही बन। ठीक है जी। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट द पोर्शंस कि आपने उसी अकॉर्डिंगली लेना है। स्नैक्स को क्लियर कर दिया है, आपके फूड ग्रुप्स को क्लियर कर दिया। आई नो वो अभी कंफ्यूजन होगा कुछ मेंबर्स के लिए, बिकॉज हर एक को समझ नहीं आती है कि किस तरह से आपने पिक करना है। लेकिन अगर आप उसको ही एज इट इज फॉलो करते रहोगे तो आपके लिए काफी हद तक वो इजी हो जाए। अच्छा, इसके बाद और हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि है स्किपिंग योर मील। अब जब मील स्किपिंग के लिए हम बात करते हैं, व्हाट हैपेंस इज के अब जैसे दिन छोटे हो गए, मेरे पास में हम 2 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं या लंच लेते हैं, उसके बाद डिनर ले लेते हैं। सो हमें भूख नहीं लगती बीच में। सो मैं उनको ये कहती हूँ भूख नहीं लगती, लेकिन यू यू डू नॉट, यू कैन नॉट स्टार्व फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours। आपने अपनी बॉडी को भूखा नहीं रखना। होता क्या है उस टाइम कि आप जब अपनी बॉडी को इतने लंबे टाइम के लिए भूखा रखते हो, यू गेट व्हेन यू स्टार्ट ऑन टू योर नेक्स्ट मील, आपके मील पे जैसे आप आते हो, यू हैव मोर ऑफ योर फूड, आपका पोर्शन एक्सीड कर जाता है। तो उसके लिए बेहतर होता है कि आइदर टेक योर स्नैक्स, ठीक है, आइदर नहीं, कंफर्म टेक योर स्नैक्स, अपने स्नैक्स लो, और उसके बाद अपने जो आपका जो मील आपने स्किप कर दिया है बीच में से, उसका यू कैन हैव योर प्रोटीन पोर्शन एटलीस्ट, सो दैट, इसलिए नहीं कि आपको भूख नहीं लग रही तो आपने जबरदस्ती खाना है, इसलिए कि दैट आप अपने नेक्स्ट मील पर खाने पर टूटे ना और आपका जो है पोर्शन ज्यादा ना हो। ठीक है, सो मिक्सिंग ऑप्शंस फ्रॉम डिफरेंट मील्स इस तरह से मत किया करें। ठीक है, आप अपने स्नैक्स को प्रॉपर लें, वो जो गैप आप दे रहे हो स्किप स्किप नहीं करें मील्स। ठीक है, और इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे किया करें, पूछ लिया करें। ऑब्वियसली मैं आपको बता देती हूँ, जैसे नॉर्मली जो सबसे ज्यादा जो इश्यू आता है वो आता है प्रोटीन पोर्शंस में। ऑब्वियसली हर एक के पास वो हर चीज अवेलेबल नहीं है जिस जिनका वो फॉलो करें। सो इसलिए एवरी वीक एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक में शेयर कर रहे हैं हम डाइट ग्रुप में प्रोटीन पोर्शंस फॉर वेजिटेरियन एंड प्रोटीन पोर्शंस फॉर नॉन वेजिटेरियन। मोस्टली वो ऊपर पिंड हुए होते हैं, और उसके नीचे आपके काफी कुछ जो मैसेजेस हैं वो पिंड मैंने किए होते हैं, चटनीज के होते हैं, उसमें आपके
ये स्केल की पिक्चर्स के ऊपर कि कितना फ्रूट कितना मेजरेबल होता है, वो होता है उसमें प्रोटीन पोर्शंस फॉर नॉन वेजिटेरियन, प्रोटीन पोर्शंस फॉर वेजिटेरियन ऑप्शंस। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो मैम ने उसमें पिन की होती हैं, ताकि आप एनी टाइम ग्रुप खोलें उसमें से चेक कर लें और आपको आइडिया हो। ठीक है, देन लास्टली मैं बात करूंगी ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस ऑल्सो। अब ये होता है डाइट प्लान आ गया, उसको फॉलो करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। बहुत सारे मेंबर्स आके मुझे कहते हैं कि मिस इज दिस वाज फॉर द होल मंथ, या जब से हमने ज्वाइन किया तब से हमारा रिवाइज नहीं हुआ। आइदर इट्स रिटन 15 डेज मील प्लान और आइदर इट्स रिटन वीकली मील प्लान। 15 डेज के बाद डाइट प्लान रिवाइज करते हैं, लेकिन उन सब इंस्ट्रक्शंस के बाद, उन सब चीजों के बाद जो मैं अब ग्रुप में शेयर करती हूँ फॉर्म के साथ, अब मैंने बाकायदा एक नीचे प्रॉपर पिक्चर पोस्ट लगानी शुरू कर दी है कि ये चीजें मुझे रिक्वायर्ड है बिफोर यू आस्क फॉर द फॉलो अप फॉर्म फॉर्म में। ठीक है, आपको 80 to 85% उसको फॉलो करना है। आपने स्केल के साथ मुझे इंचेस अपडेट भी देने हैं, आपने ओल्ड डाइट प्लान भी ट्रैक करना है, आपने अपने फर्स्ट डे वेट और करंट वेट देना है। ठीक है, और अब मैं उसमें और मजीद ऐड कर दूंगी कि आपको उसमें कोई मेन्यू स्पेसिफिकली ऐड करना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। मैं हमेशा वैसे फॉलो अप से पहले उनसे इन पर्सनल मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि इफ यू वांट टू ऐड मी सम स्पेसिफिक मेन्यू। बाकी बेसिक्स का मुझे पता है, सर्दियां हैं तो मैंने सर्दियों के अकॉर्डिंग करना है, विंटर्स है तो मैंने विंटर्स के अकॉर्डिंग करना है। बट इट्स बेटर कि आप उसको जो है मुझे अगर आप बताना चाहो तो आप बता दें, तो जैसे कि आपके मील्स हमेशा से कस्टमाइज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कर देती हूँ। ठीक है, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है डाइट प्लान का वो पढ़ा करें, जो नोट्स होते हैं वो पढ़ा करें। ओके, मैं बताती हूँ, मैं भी एक्यूरेट आंसर करूंगी। जो नोट्स हैं प्लीज उसको पढ़ा करें और दोबारा भी पढ़ लिया करें, एक दफा पढ़ के ना छोड़ दिया करें कि पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। उसमें लिखा हुआ है, अब मुझे एक और मैसेज जो आता है, मैम कैन वी हैव जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हनी, शुगर, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड what else jaggery, they all have same calories, you cannot include any of। अब फिर अच्छा यहाँ तक भी पढ़ के उनको चैन नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है कैन वी हैड जैगरी पाउडर, कैन वी हैड देसी गुड़। भाई वो सब सेम नाम है उनके, समझो इस चीज को कि वो इंग्लिश अगर समझ रहे हो तो उसमें सारा कुछ एक ही चीज आ रहा है। अब देसी गुड़ कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कोई 5-7 कैलोरीज आपकी कम हो जाएंगी, उसमें भी उतनी ही कैलोरीज होती हैं। सो गो फॉर स्टीविया, गो फॉर शुगर फ्री टैबलेट्स, या फिर मीठा निकाल दें। आप सब वैसे ही बहुत मीठे हैं तो लाइफ से मीठा निकाल दें, यही। ठीक है, अच्छा जी। व्हाट एल्स, अच्छा कुछ क्यूरीज हैं उसको आंसर करते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। क्यूकम्बर्स ले सकते हैं फैटी लिवर वाले, कोई इश्यू नहीं है। स्प्राउट्स सैलेड के ऑल्टरनेट स्प्राउट चिला ले सकते हैं, बिल्कुल। आप उसको किसी भी चीज में रिप्लेस कर लो, आप उसको चिला में कर लो, आप उसको सैलेड में कर लो, आप उसको रॉ में कर लो, ठीक है, आप उसको सिंपल सॉर्टेड में कर लो, किसी में भी यूज कर सकते हो। रोटी वीक में एक दिन ले सकती हूँ। अर्पिता, हाँ आप ले लो, आपको तो मैंने थोड़ा सख्त हाथ रख के बताया था, लेकिन अगर इफ यू आर ओके आपने लेना है तो आप ले ले। आई नीड टू नो ऑल्टरनेटिव्स ऑफ फॉर स्प्राउट्स एज योर ऑयल, ऑयल प्रोटीन ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें बेसन आ जाएगा, जिसमें सोया आ जाएगा, जिसमें टोफू आ जाएगा, ठीक है, जिसमें दाल आ जाएगी, जिसमें लेंटिल्स आ जाएंगी। हेयर फॉल के लिए भी बताएं, हेयर फॉल के लिए अगर विंटर्स में कोई रोजे रखना चाहे, रोजों का प्लान मैं अलग प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, फास्टिंग प्लान आ जाते होते हैं, मैं आप मेरे से पूछ लें, बिल्कुल मिल जाता है। अच्छा, हेयर फॉल का मैं एक क्विकली बताऊंगी। So okay to have beet roti daily in breakfast, हाँ as long you are taking your portion। ठीक है, अगर सीधी साइज रोटी ले रहे हो तो वो आप ले सकते हो, दैट इज टोटली फाइन। अब रोटी पे क्या हो रहा है, रोटी के ऊपर मेरे पास लास्ट वीक में मैंने बहुत चेक किया, इतने ज्यादा मेंबर्स के बकायदा ग्रीस्ड रोटी आ रही, ऑयल का ऐसे ऊपर लगा हुआ है, ऐसे चमकता चमकता ऑयल आ रहा था। भाई आपका ऑयल पोर्शन, योर फैट पोर्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन योर करीज, आपकी करीज में कंप्लीट हो गया हुआ है। आप अब ऊपर से लगा लगा के खाएंगे तो वेट लॉस करना है, वो जो लगा रहे हो ना वो ऐसे ऐसे लेयर आपकी बॉडी में फैट की आती जाती है, मुझे ना कहना फिर वेट नहीं कम हुआ इस वजह से, ठीक है ना। अच्छा, हेयर फॉल के लिए मेरे मेरे जो डाइट प्लान्स हैं, मैं आपको गारंटीड से कह सकती हूँ हेयर फॉल, हेयर स्किन और नेल्स के लिए हेल्दी है। क्यों? इट हैज नट्स, इट हैज सीड,
इट हैज डेयरी इन इट, ये फ्रूट्स ऑल्सो, ये 3-4 चीजें आपकी स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर तो आपके साथ कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फिर तो वो डेफिनेटली आपके बालों को भी इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर नहीं भी है तो जानी हर चीज आपकी डाइट से कंप्लीट नहीं होती है। जो दवाई में चाहते हो बालों की स्ट्रेटनिंग के साथ, आयरन के साथ, सल्फेट वाले शैम्पूज के साथ, हाइलाइट्स के साथ, वो भी तो कुछ दवाई कर रहे हैं ना। और जो पहले ही अगर वेट लॉस करने से पहले ही हेयर फॉल था तो उसके साथ डाइट के साथ कभी भी भरा नहीं हो। और सैडली हम वेट अपने हेयर फॉल को सिर्फ डाइट के साथ कवर अप भी नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक फॉर सप्लीमेंट, जो कि आप अपने फिजिशियन से पूछेंगे। बायोटीन हमारी बॉडी नेचुरली अच्छा प्रोड्यूस कर देती है, लेकिन सिंस अगर हम अपनी बालों की इतनी दवाई बचा लेते हैं तो उसकी एक्सटर्नल सोर्स जरूरी हो जाती है, जो कि मैं प्रिस्क्राइब नहीं करती। ठीक है। अच्छा जी। ओके, मैं बताती हूँ। दो बातें हो सकती हैं पूजा फॉर दैट। वन इज यू कैन गिव मी योर मेन्यू, दैट इज इजी टू गो फॉर यू। ठीक है, अगर कुकिंग का ऑप्शन है या मेन्यू का ऑप्शन है, यू कैन कम अप विद योर ऑप्शंस, मैं उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करूंगी। या अगर आपको ये है कि जो जो भी है आप उससे पोर्शन एक्सीड कर रहे हो, तो आपको स्ट्रिक्टली अपने पिक्चर्स मुझे भेजनी है, ग्रुप में भेजनी है, सो दैट आपको पता चले कि समवन इज वॉचिंग यू। ठीक है, एक हफ्ता तो प्यार से चेक करती रहूंगी, देखती रहूंगी, अगले हफ्ते मैं डांटना शुरू कर दूंगी, फिर आप कहेंगे बहुत डांटी है भाई, इसको तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए so जब आपको कोई देख रहा होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ इट्स बीन लाइक फॉर 15-20 डेज। ये आई नो कि ये थोड़ा बिजी चल रहा था आपका, नवरात्रि एंड करवा चौथ एंड ऑल दोस हैपनिंग्स के बाद भी थोड़ा मुश्किल चल रहा था। तो बट आप मुझे बहुत कम मैसेजेस आ रहे थे मेल ट्रैकिंग ग्रुप्स में। बट आई 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 सजेस्ट यू, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज आप पिक्चर्स भेजें। ठीक है। अच्छा, फिर ये होता है कि मिस हमें तो रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं भी और हमारी मेरी असिस्टेंट भी वो चेक कर रही हैं, अगर कहीं पे करेक्शन की जरूरत है वो एट एनी टाइम ऑफ द डे, किसी भी टाइम पे आप अपने जो है हम आपको चेक करके गाइड कर देते हैं। और अगर उस टाइम आपने खा लिया, नो प्रॉब्लम, आपको वो नेक्स्ट मील के लिए पता चल जाता है कि दैट वाज योर मिस्टेक, आपने उसको रिपीट नहीं करना। ठीक है जी। एक मुझे मैसेज और आया था, मैं पहले पढ़ लूँ। हाई कैन बी you can measure your portions in tablespoon. You can measure your portions in bowl. You can measure your portions in grams. Whatever scale is easy for you, convenient for me, just come up to me and I will revise your diet plan accordingly. I try to make it more and more handy for you. सब रिपोर्ट्स अच्छा है डाइट करने के बाद सब। थैंक यू अर्पिता, थैंक यू अर्पिता। कौन कौन सी और अच्छी चीज होगी? आपकी स्किन हेल्थ अच्छी है, हेयर हेल्थ अच्छी है, आपका घर का बजट में ऑयल कम होना यूज हो गया है, आपके बाकी सारी चीजें भी सेटल हो गई हैं। सो ऑल इन ऑल आपको सही बेनिफिट मिल गया। ओके। सो रिजल्ट आते हैं इफ यू स्टे कंसिस्टेंट, रिजल्ट आते हैं इफ यू गिव इट अ टोटल टोटल ट्राई। ठीक है, इफ यू गिव इट एन ऑनेस्ट ट्राई। लेकिन अगर ये कह लो, ये देख के कर लो, ये लिखा है, ये तो मेरे लिए डुएबल भी नहीं है। अगर नहीं है तो आप आए मेरे पास, मुझे बताएं कि मिस मेरे ये क्या लिखा है आपने, मेरे तो घर में ये नहीं बनता। ठीक है। इतना मैं कह सकती हूँ कि आई एम इन ऑल एक्सपर्टीज, आई एम केपेबल ऑफ कस्टमाइजिंग एवरी डाइट प्लान। और ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ करी हूँ, ये समथिंग लाइक दैट, बिकॉज हम क्लेम करते हैं कि हम आपको कस्टमाइज डाइट प्लान देंगे। सो हम आपको कस्टमाइज दे सकते हैं और देते हैं आपके अकॉर्डिंगली। That's why we ask if you prefer South Indian food, if you prefer North Indian food, Hyderabadi, Gujarati, Bengali, महाराष्ट्रन, ऑल फूड में हर तरह के बनाते हैं, इसीलिए इसीलिए कि आपके लिए जो घर में बन रहा है वो आप इजीली उठा सको और उसके अकॉर्डिंगली फॉलो कर सको। ब्राउन राइस को व्हाइट राइस से रिप्लेस कर, ठीक है, आई नो दैट्स इट। दैट विल बी मेंशन प्रॉपरली इन योर in your form, in your diet plan, sorry Manasa, that will be properly mentioned in your form, that how much rice you have to use, how much chapati for flour you have to use, how much lentils you have to use, how much millets you have to, that will be all then in grams. हील में पेन्स के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वर्कआउट की वजह से भी हो सकता है, या आपने कुछ छलांगे छलूंगे मार लिए वर्कआउट में खुशी से, उससे भी हो सकता है, या अगर वैसी पेन रहती है तो आइसिंग करें उसके लिए। यूरिक एसिड से भी हील में पेन हो सकता है। तो ऐसे रैंडम पूछेंगी तो फिर मैं रैंडम ही जवाब दूंगी, मुझे ऐसे नहीं पता आपकी हिस्ट्री क्या है या। ठीक है जी।
तो मैंने इसके लिए एक ये क्विक वाला सेशन हमने इसीलिए रखा कि हम आपकी क्वेरीज को आंसर कर सके, क्योंकि मेरे पास आ रहा था, मैंने जब डाइट प्लान्स देने शुरू किए स्कूल मेंबर्स को पता चल गया हुआ है, उनको पता है कि जी किस पैटर्न, लेकिन बहुत सारे खैर स्कूल मेंबर्स की भी गलतियां मैं देखी कि मैंने उनको हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट लेके उसको सर्कल करके भेजा कि मैंने लिखा हुआ है उसमें, आप प्लीज चेक करें। दलिया भी यूज कर सकते हैं, बीट, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर कार्ब्स, आप कर सकते हो। इसमें मेंशन की मोस्टली मैंने मेंशन किया। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा जी। ठीक हो गया। ओके, दैट्स रियली गुड, दैट इज रियली गुड। सो अर्पिता इज वन ऑफ द एन एक्टिव मेंबर जिन्होंने अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कर ली है, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जिस तरह से वेरिएशंस लेके आती हैं, हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स लेके आती हैं, बेशक वो मेरे से कंफर्म करके लेके आती हैं, लेकिन वो जब लेके आती हैं तो उनकी इनोवेशंस पे मुझे खुशी होती है कि वो अपने लिए टाइम निकाल रही हैं हेल्दी कुकिंग के साथ और हेल्दी सब्स्टिट्यूशंस के साथ, ऑल्टरनेटिव्स के साथ। सो अगर आप सीरियस हैं तो आपको थोड़ी सी इसके बीच के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड वर्किंग लेडीज के लिए कहीं ना कहीं पर मुश्किल हो जाता है अपने लिए स्पेशली करना मैनेज। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। I'll see you on the next Sunday now with another important topic. So those members who have been in like so much away from your diet plan, जिन्होंने बहुत टाइम से इसको छोड़ा हुआ था अपने ऑन हैपनिंग्स की वजह से, मेक श्योर कि अब आप सारे XYZ जो भी आपके इश्यूज हैं उसको खत्म करें और अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए सीरियस हो जाएं। ठीक है जी। सो आई एक्सपेक्ट जो लेडीज यहाँ पे हैं अगली ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी तरफ से आए। हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।